ৰণদংকা 2019 আগবঢ়াইছে বেষ্ট চিমেণ্ট জানদাৰ চিমেণ্ট শানদাৰ জোৰ বেষ্ট লাগে এইবাৰ সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আমি এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত যিখন ৰাজ্যই নিৰ্ধাৰণ কৰে দেশৰ ৰাজনীতি যিখন ৰাজ্যই নিৰ্ধাৰণ কৰে দিল্লীৰ দৰবাৰত কোন বহিব সেই ৰাজ্যখনত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত এনেকুৱা তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সেই তিনিটা সমষ্টি হাই প্ৰফাইল সমষ্টি বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰথম সমষ্টিটোৱে আছে আমেঠি সমষ্টি যিটো সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় ৰাহুল গান্ধীৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা হয় এইবাৰ এই সমষ্টিটোত স্মৃতি ইৰাণীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ওলাইছে তাৰ বিপৰীতে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটো সোনিয়া গান্ধীৰ অক্ষত দুৰ্গ আৰু এতিয়াও অক্ষত হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তৃতীয় সমষ্টিটো হৈছে সুলতানপুৰ সমষ্টিৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্ক এটা আছে কি সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কেও আমি আপোনালোকক জনাই যাম কিন্তু আহক প্ৰথমতে আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেঠি সমষ্টিৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাও আৰু লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমেঠিৰ ভোটাৰসকলৰ মনৰ কথা প্ৰথমে আমেঠিৰ ভোটাৰসকলৰ মনৰ কথা দেখুৱাম আমেঠিবাসীয়ে কি দেখুৱায় আৰু আপুনি মই সদায় শুনি অহা আমেঠিৰ প্ৰকৃত ছবিখন কি চাই লওঁ আহক মোৰ লগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামু আছে ৰামুৱে দেখুৱাই গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যে আমেঠিৰ এখন গাঁৱত আহি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু চাৰিওফালে ঘেঁহু খেতি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এফালে ঘেঁহু খেতি আৰু ঘেঁহু খেতিৰ কাষতে যিসকল কৃষক আছে কৃষকৰ বাসগৃহসমূহো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেছি সংখ্যক লোকেই হ'ল কৃষক আৰু কৃষকৰ কি সমস্যা সেই সমস্যা সম্পৰ্কেও কৃষকে আমাক জনাব প্ৰাগ নিউজত দৰ্শকসকলক জনাব এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকল ভোটাৰ আছে প্ৰায় 60% কৃষকেই ভোটাৰ হিচাপে চিহ্নিত হয় উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু বিশেষকৈ আমেঠি সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী বা গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰতি দীৰ্ঘদিনীয়া সমৰ্থন আছিল আমেঠিবাসীৰ সেই সমৰ্থন কিছু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে গান্ধী পৰিয়ালে কি কৰিলে আমেঠিত কি কৰিলে যোগী আদিত্যনাথৰ বিজেপি চৰকাৰে কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই ছবিসমূহ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু দেশৰ ৰাজনীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক যিখন গাঁও দেখুৱাইছোঁ এই গাঁওখনৰ ওচৰতে আচলতে বহু সংখ্যক লোক গোট খাইছে আৰু প্ৰাগ নিউজ অহা বাতৰি পাই তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে মনৰ কথা ক'ব সেই মনৰ কথা আজি অসমবাসীয়ে শুনিব সেই মনৰ কথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে শুনিব বহু ৰথী মহাৰথীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামুৱে দেখুৱাই গৈছে যে কৃষকৰ গাঁওখনৰ ওচৰৰ কি ধৰণৰ দৃশ্য আৰু আমি এতিয়া যিসকল প্ৰাগ নিউজ অহাৰ বতৰা পাই কৃষকসকল আহি উপস্থিত হৈছে সেই কৃষকসকলৰ ওচৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে জনাব যে চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণত কিমান দূৰ সফল হৈছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আৰু আমবাগানৰ তলত এই ধৰণে আমি উপস্থিত হৈছোঁ এখন আমবাগানৰ তলতে এতিয়া ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে পুৰুষ মহিলা আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন জাতিৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহি একত্ৰিত হৈছে আচলতে আমেঠি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই স্থানত আহি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে ইয়াতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ বতাহ বলিছে কি ধৰণৰ সমস্যা আছে এইসকল কৃষক আৰু কৃষকৰ পৰাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমেঠিত আচলতে তেওঁলোকক কোনে কি দিলে কোনে কি নিলে প্ৰথমতে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেখেতৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হুক্কাত ব্যস্ত ব্যক্তিগৰাকী চাচা वो क्या मिला है किसानों का समस्या क्या है यहाँ पर कहूँ कुछ नहीं ना हाँ हाँ हम हैं बॉर्डर पर अच्छा
तो कभी अमेठी जिला हो जाता है तो कभी रायबरेली। हाँ। इससे कोई यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है कोई चीज़ का। तो समस्या क्या क्या है? और अरे हर चीज़ के हर अब आप समस्या खुद देख ले। हाँ तो सामने तो इलेक्शन है, चुनाव है, तो कौन सी सरकार अच्छा है यहाँ पे? अरे सब सरकार अच्छी है, उतने डकैत तो सब हैं। अच्छा, अच्छे कोई नहीं है? अच्छे कोई नहीं है, जो आया वही लूटा। आप लोगों का प्रतिनिधि कौन है? यहाँ का प्रतिनिधि सबसे पहले यहाँ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, नेहरू सब यहाँ के थे, मगर कि क्या दशा है आप देख रहे हैं खुद, कैसा विकास हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं। तो गांधी परिवार से नाराज है क्या आप लोग? नाराज नहीं है, हम नाराज होके क्या करेंगे भाई? लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? किया कुछ नहीं, और ना मोदी ने ही किया कुछ। हाँ। আচ্ছা, এই ধৰণৰ মন্তব্য কিছু আগবঢ়াইছে যে গান্ধী পৰিবাৰে ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰতিনিধি হিচাপে, কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ ওপৰতো যি ভৰসা আছিল সেই ভৰসা নোহোৱা হৈছে, আৰু লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে। এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যুৱা है आप, किसानों का गाँव है ये, तो कौन सी सरकार अच्छा है, नरेंद्र मोदी का या फिर राहुल गांधी का सरकार बनने वाले है दिल्ली में? कांग्रेस सरकार मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने जो भी किया है लाइट वाइट वगैरह वगैरह, कांग्रेस बेहतर है बीजेपी से। बीजेपी क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। देखो हमारे लोगों को ना नाली है ना साला पानी है, सड़क देखो कैसे है, बड़े बड़े गड्ढे हैं साले, एक बार गिर जाओ तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचो। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ के सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ योगी ने सिर्फ ये किया है, बैलों को सिर्फ छोड़ा है, गायों को सिर्फ छोड़ा, किसान को बर्बाद करने के लिए। अभी देखो जाके खेतों में कम से कम 20-25 गाय इधर उधर घूम रहे हैं। वही विकास मेरा मतलब गांव लोगों को हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। क्या समस्या हो गया है? गाय को छोड़ दिया, गाय को छोड़ने से क्या क्या समस्या हो गया? और क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं। गाय का मतलब पहले सब खरीद लेते थे, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है? ये सब बिकते थे। अच्छा, अभी कोई ना खरीदता है ना किसान बेचने पाता है। क्यों? ये सब मोदी का देन है। कांग्रेस के राज में सब ऐसा होता था, गाय बछड़ा सब कुछ बिकता था, आदमी बांध के रखता था। अभी उनका कोई कीमत नहीं है, सब ऐसे हमारा घूम रहे हैं। जिसकी जरूरत नहीं वो है, जो हमें जरूरत है वो मिलता ही नहीं। कांग्रेस से मिलता था, कांग्रेस आई नहीं। तो किसानों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा आप लोगों को मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सरकारी सुविधा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, नहीं है। अच्छा चाचा आप बोलिए, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? हाँ, समस्या ये है साहब कि जब की इनकी राज रही है तब जितने हरजन हम यहाँ रहे हैं सबको वो 10-5 बीघा खेत जमीन दी है, और दई के उनका सब पर कब्जा कराए के जोतान बोआई हैं। और वही खेत 5 साल ने इनकी राज में आवा है तो सब का कच्चा गेहूँ कटवाए मर दिया, कहीं कि नहीं बस सब मिला काट के खेत से खारिज हुआ, पत्थर तो खारिज कर पाए। सब कच्चा गेहूँ काट जितने बोए रहे हैं ढेर पत्ता सब छोड़ा दी। आज वही है, आज जहाँ गोट धर दिया तहाँ बस कहे ये चीज़ पर जो 52,000 धर दिया तो पर गोट धरा। वो सब समस्या है, आप क्या बोलना चाहोगे? क्या क्या समस्या है इस गांव में? क्या समस्या है? दूसरा सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं, सरकारी सुविधा कोई सरकारी भी सुविधा यहाँ पे नहीं मिली। जब से सरकार आई कोई सुविधा नहीं हुआ हमको। बिजली? हाँ, बिजली पानी का समस्या है ना? क्या समस्या है? बिजली पानी भी आती है, कट जाती है, तमाम बिल भी क्या कहते हो जोड़ दिया, कहाँ से दें? हमको सबसे बड़ा भाई सुविधा यही है कि कांग्रेस से सुविधा मिली है और मिली नहीं कुछ। कांग्रेस से सुविधा मिली है। हाँ, तो राहुल गांधी इस बार फिर से आया है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, किसको पसंद करते हो? हम राहुल गांधी को पसंद कर। राहुल गांधी को पसंद करते हो? राहुल गांधी पसंद करार कथा उल्लेख कर युवा प्रजन्म आने एगराकी प्रतिनिधि है, मैं एवं जानिबोला चेष्टा करूँ। युवा है आपको क्या चाहिए? युवा को क्या चाहिए यहाँ का, अमेठी का? कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए? क्यों? नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी वोकरी कहीं मिल ही नहीं रही नौकरी मिल नहीं रही है? कहाँ मिल रही है? स्कूल है पास में, पढ़ाई होते है? स्कूल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, बस ऐसे ही स्कूल तो हैं बस। हाँ, बेरोजगारी बहुत है, कुछ नहीं।
कोई सुविधा नहीं, ना नौकरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो नाराज हो क्या सरकार से? नाराज हैं ही है। कौन सा सरकार से नाराज? मोदी, बीजेपी बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। আমেঠিৰ ৰাইজৰ মাজত সেই প্ৰশ্ন এটা আছে যে কি কৰিব বিচাৰে। কি আন এগৰাকী যুৱক আছে, স্কুল যাতে हो आप नहीं কিয়? আচৰিত ধৰণৰ কথা। এইখন গাঁৱত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, ৰায়বেৰেলী আৰু আমেঠিৰ সীমামূৰীয়া এইখন জিলা, আৰু এই জিলাখনত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এই জিলাখনৰ এইখন গাঁও, আৰু এই গাঁওখনৰ কোনো ধৰণৰ এই গাঁওখনতে কোনো ধৰণৰ স্কুল বা বিদ্যালয়ৰ অভাৱ বুলি কোৱা হৈছে। क्या बोलना चाहोगे आप? क्या क्या समस्या है आपके गांव में? सर समस्या तो बहुत समस्या, जब से 5 साल से सरकार आई, मोदी योगी सरकार, सारी समस्याएं सब लालीपोप, काम कुछ नहीं। हम लोग इतनी परेशान, खाद मिलती नहीं, खाद मिले तो दूना दाम, उसके ऊपर GST लगी, हम लोग क्या करें? किसानों को जो पैसा दे रहे थे मोदी सरकार, 6,000 रुपया से सब मिला आप लोग? ना जी, पैसा नाम चीज कुछ यहाँ कभी अनुदान कभी मिला ही नहीं मिला। तो वो लोग तो बोल मिलता गरीबों के लिए, यहाँ राशन मिलता वो भी नहीं मिलता। अंगूठा लगाए, एक आदमी जाए कहते नहीं, लेडीज को भेजो, लेडीज नहीं रहती कहते बच्चे को भेजो, जाते मुड़ के चले आते बेचारे, क्या करें? वो भी नहीं गरीब पा रहे हैं, दलित। हाँ, आप लोग भी नहीं मिल रहे क्या? दूसरे को नहीं? ना किसी को भी नहीं मिल रहे हैं, ना कोई विकास। हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस का विकास है, जो आप देखे होंगे सड़क उड़क, ये सड़क वड़क कांग्रेस के दिन में ही है? जी कांग्रेस का दिन है। अब कांग्रेस देती चली, हम लोगों से लेती चली आई है, मगर ये सरकार जब से आई बस एकदम झूठा वादा। तो किस लिए यहाँ पे काम? अल्पसंख्यक रहते हैं इसलिए काम नहीं होते? जी दलित रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, इस करके जो तो दलित और अल्पसंख्यकों को मोदी पसंद नहीं करते हैं क्या? नहीं, वो झूठ बोलते हैं, मुंह से पसंद करते हैं। अब कार नहीं है धरती के ऊपर, जमीनी काम कुछ नहीं है, जमीनी काम नहीं कुछ काम नहीं है। কিছুসংখ্যক মহিলা আছে, মহিলাসকলৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিম, কি মন্তব্য আগবঢ়ায়। कि आप लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है? महिलाओं को सुविधा मिलते हैं यहाँ पे सरकार से? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। गैस सिलेंडर मिला? नहीं, आप लोगों को नहीं मिला? आप लोगों ने अप्लाई किया था? कुछ नहीं, ना गैस सिलेंडर, ना अंगूठा बिना लगाए, राशन नहीं न मिला। वोट तो देते हो आप लोग, वोट करते हो ना? हाँ, चुनाव में वोट करते हो। इस बार भी तैयारी हो चुका है? कहा जानी कहा था वोट डालने का? वोट डालोगे ना? हाँ, तैयारी तो वहाँ मुला की जैसे अच्छा है वही का दिन जाए। कौन अच्छा होगा यहाँ पे? अच्छा ये तो नहीं ना अच्छा। कौन सा सरकार अच्छा होगा? ये अच्छा राहुल गांधी अच्छा है, आई जवान मदिया तो कुछ ना है। मदिया कुछ नहीं। अच्छा, क्या आप क्या बोलने चाहोगे? बोली भैया जाऊँ ना है ना, हमारे गांव में सड़क बनी है, न नाली के बनवाए हैं, न राशन मिले। राशन मिलत है तो घर में ही साथ में नहीं राशन, कबो 10 किलो मिल जाए, कबो 15 किलो साथ मिला में। और न गली का नाली बनी है कि कहूँ का नहा धोए, कम से कम तो पानी तो बह जाए। और न कटिया कह खाई तो है, न खेती न बारी, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। हाँ, ये खेती बाड़ी कुछ नहीं ना, अपने कमाई से बनायो ली। इतने दिन होएगा, कबो न कौनो प्रधान, न कौनो सरकार, न कॉलोनी दीस, न कुछ नहीं, न लेटरिन बनती है उनका नहीं। अपनी कमाई से घर द्वार बना के वही में कैसे वही कमाई खाई तो है कटिया कई। लोग का जो प्रतिनिधि है राहुल गांधी कभी आते हैं इस एरिया में? कहाँ ही भैया, क्यों नहीं आता है? क्या कही कि क्या आवत है, क्या नहीं आता है, क्यों ही नहीं आता है। लेकिन कौन अच्छा होगा? किसका सरकार अच्छा होगा? वोट तो डालोगे आप लोग? हमारे कुछ हमका क्यों कबो कुछ करबे नहीं बा, क्या समझी कि क्या नीक करिस के बेकार करिस। क्या वही राशन मिला था 10-15 किलो वही मिला था, और हमका कुछ मिलबे नहीं बा, तो का हम जानी कि क्या हमका नीक करिस के बेकार करिस। এই ধৰণৰ ক্ষোভ আছে আচলতে অঞ্চলবাসীৰ, যে যি ধৰণৰ সুবিধা পাব লাগিছিল চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত, আঁচনিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত। চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি আছে এই আঁচনি সম্পৰ্কে কোনো চৰকাৰী আঁচনি সম্পৰ্কে অৱগত নহয়। सरकार का जो स्कीम है ना उसके बारे में आप लोगों को मालूम होता है? ना ही कोनो मालूम नहीं ना। कोई लोग आते हैं समझाने के लिए? ना ही, क्यों नहीं। पहले आते थे? हाँ, पहले तो आवत है कांग्रेस सरकार में। कौन आते थे कांग्रेस सरकार होने? अरे हमारे राहत रहे, काम करता अधिकारी वही लोग आवत रहे, अब क्यों उगते ही नहीं ना। आजकल अधिकारी भी नहीं, अब सड़क खराब या क्यों नहीं आवत। तो मेडिकल है पास में? नहीं, मेडिकल है यहाँ से हुए 7-8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7-8 किलोमीटर हुई। हाँ, 7-8 किलोमीटर हुई। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोग क्या करने वाले हो? अब की राहुल का आवे का है। हाँ,
दिल्ली में किसका सरकार चाहिए तब तो? राहुल कुल चाहिए मेरे राहुल का सही, कांग्रेस का सही है? कांग्रेस सही है। तो लोग तो बोल रहे हैं कि राहुल यहाँ से करेला में भी चला गया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसमें कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, राहुल कुल से निकलेगा। और प्रियंका गांधी भी आ चुकी है अभी, तो प्रियंका गांधी से लगाव है कि नहीं है? प्रियंका गांधी से बहुत लगाव है, कांग्रेस पूरे परिवार से बहुत लगाव हम सबको। कांग्रेस बहुत अच्छे है, हम उसी को चाहेंगे, उसी को मतलब। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जीत जाएगी इस बार। सवाल ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलेगा बीजेपी का कहाँ से पत्ता गोल हुआ, सड़क से जाएगा, कांग्रेस आएगा बस। तो आप लोग कांग्रेस को ही वोट डालोगे? कांग्रेस को वोट डालेंगे, डलवाएंगे भी, जहाँ तक मेरा बस चलेगा। अच्छा, प्योर कांग्रेसी हैं हम लोग। अरे भैया का समस्या बताई, सरकार तो बिजली फ्री दे दी, अब कनेक्शन ले ली ना, अब बिजली के बिल माफ नहीं न हुआ, जब पैसे इधर उधर से कह दी, हम सब गरीब मने कहाँ से जमा करी? तो माफ नहीं हुआ? कहाँ माफ हुआ, हमारे सबके पैसा नहीं जमा हुआ, अब कहाँ से करबे करी, भवे नहीं हुआ पैसा तो कहाँ ले जाए जमा करे? अब नरियागा में इतना काम करें, नहर कोठी में नाम काम करें और हमारे पैसा नहीं मिला। हमारे सबके तो गरीबी मने कहाँ काम लागत है, न बूत लागत है, खाई पेटे के करी के लड़कन बच्चन के पढ़ाई 5-5, 6-6 जने 7 जने हैं, और राशनो नहीं मिलत पूरा बराबर। यहाँ से अति राशन भी नहीं मिलता है? मिलत है, मुला सब बच्चन के नहीं संति मिलता है। अच्छा, तो चूल्हा मिलता है? चूल्हा मिला? गैस? कहाँ गैस? गैस हाँ मिला है, गैस मिला है, लेकिन 1500-1600 रुपया हुआ देना है तो जाके गैस मिला है। 1500-1600 रुपये देना पड़ता है? हाँ देना पड़ा है, और वहू में अब इतनी महंग गैस का दिन हम गरीब मने कहाँ से भराई, कमाही वतनी अपने लगे है नहीं, और लड़का 6-7 जने का खर्चा है, खेती बाड़ी 10-5 बिस्सा है, और राहुल के राज में फ्री बिजली लाग कहीं 30 रुपया पड़े, और हम गरीब मने न हमारे टीवी न कुछ, और खाली एक लाइट जलाई थे, वह कई बताओ लाख 1.5 लाख आ जाए बिल, तो हम गरीब मने कहाँ से देवे? अपन 4 ठू लड़का पालब, कटिया बिनिया कह के कि का कहते कि बिजली के बिल देवे, बिजली के बिल पड़ी है दिया कहे रहे हैं, यहू तक का नहीं आवा नहीं यहू अपने लगे खेती है, अब 10-5 बिस्सा खेती में का करी? आज के 15 साल पहले हमका 10 बिस्सा का पट्टा मिला रहा, पट्टा रखा है और कब्जा नहीं न मिलत हमका। हमका कौन फायदा है बीजेपी सरकार से? एक पैसा का फायदा नहीं है। तो कौन सा सरकार चाहिए? सरकार हमें बढ़िया चाहिए, राहुल तो ठीक है। राहुल ठीक है? हाँ, राहुल ठीक है, कूढ़ा मौजा हमारा, और काहे चीज का विकास हमारे खिया नहीं ना, एक पैसा का विकास नहीं ना। अब बहन हमका सबका 100 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो क्यों साहूकार खिया कर्जे मांगे जाए के पड़े? हम सब गरीब मने कैसे अपन टाइम बिताई? कमाही एक पैसा का नहीं ना, कमाही एक पैसा का नहीं ना, और न ही तो काम लगे न धंधा लगे, तो बताओ कहाँ से हम लोग बच्चा पाली, कहाँ से अपन पेट पाली, कैसे गुजर? अब साहेब ऐसा है कि हम राण रेवाहन, हमारा घर जौन है सब कच्चा है। अच्छा, आए सरकारी घर नहीं मिला? नहीं, हमें न कॉलोनी वोलोनी नहीं मिली साहेब, और आप हमारा लौंडा है, कमकिला है, पतुआ है, पागल है, हम राण हैं साहेब, हमका राशन नहीं मिलत, अब तक मिलत रहा है। कोटेदार कहा थी कि आवे नहीं ना, और प्रधान नूर प्रधान आए हैं कि इसका राशन आवा है तो चाहे अंगूठा लागे बुढ़ाए गए है, चाहे नहीं का राशन दियो, और साहेब राशन नहीं मिलता, न कोनो हमारे कारठ है, और मुहारे साहेब हमारे पोंगा में पानी खरिंजा खाली है, और सब कोई के पानी हमारे मुहारे आता है, कहूँ को नारी नहीं न साहेब, और हमारा घर कच्चा है साहेब, हमका कॉलोनी नहीं मिली। ठीक है, और এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ বাসগৃহ নাই, যি চৰকাৰী বাসগৃহৰ কথা কোৱা হৈছিলে। আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, क्या समस्या है आपका? क्या नहीं मिला? ऐसा है साहब कि हमारे यहाँ हमारी देख में कुछ नहीं न देखा जात है, बाकी कि अब वोट का समय आवे तो सब जाए, और वोट के समय निकल जाए क्यों पहचान न पाए, कोई नहीं पसंद है, और कोई पहचान तो फिर ऐसी दशा आवत तो ऐसे तुझसे बताई थम हैं। तो ऐसा कुछ है कि आज वहाँ मीटिंग रही छतोम की मीटिंग मंगा रही, छतो की मीटिंग मंगा रही, जो कुछ देखा जो कुछ सुना वह का जरूर गौर कीन, बाकी यही इतना नहीं कीन जात साहेब कि अमीर मिल के जल्दी से मुआ अगवानी रोक के लड़ लीन, और गरीब साथ बैठ के बैठे रह गए, वो तरह के तरह रह गए। यहाँ के विधायक अभी तक यहाँ से विधायकी के इलेक्शन तो जीत चुके हैं, पर जब से जीते हैं यहाँ पे दिखाई नहीं दिए हैं।
आया नहीं है कभी? कोई जानकारी हमारे लोगों के लेने नहीं आए कि यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, किस हालात से गुजर रहे हैं, क्या बीत रही उस पर, मतलब कुछ कोई पता नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ब्लॉक में पंचायत इलेक्शन के पहले आया था क्या? इलेक्शन के पहले तो आते हैं सभी हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं, सब कुछ करेंगे, बहुत विकास करेंगे ऐसा बोल के जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे कोई नहीं दिखाता है। हमारे लोग के लड़के हम सब तन पेट के लिखावा पढ़ाओ नौकरी के लालच में नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, खेती बाड़ी हमारे लोग के है नहीं, हम लोग कैसे क्या करी बतावा। तो कौन सा सरकार अच्छा था? अब सरकार हमका सबका सब नहीं किया है, कोई सरकार खराब नहीं ना, राहुल भी नहीं कहा है, मोदी भी नहीं कहा है, सब कोई नहीं कहा है। जो कोई हमारे सबके पेट भरे तब नहीं कहा है, जब हमारे सबके पेट नहीं भरे तो हमको सबका सब बराबर है। क्या क्या सरकारी योजना है यहाँ पे और लागू हो चुका ही नहीं हुआ है? जी सरकारी योजना यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन यहाँ मुहैया किसी सरकार ने जो है मुहैया नहीं करवाया है। हम लोग जो है प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि होने के लिए जो जाते हैं लोगों के घर घर प्रतिनिधि बनने के लिए, प्रतिनिधि बनाया गया, हम बने, उसके बाद अब इन लोगों के लिए रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, आन और लोगन के गांव में जो है इंटरलॉकिंग हो रही है, खरिंजा लग रहा है, यहाँ जो है ना तो लोगन का नाली के व्यवस्था है, ना यहाँ कोई सूर्य ऊर्जा का भी दिया गया है कि किसी मंदिर पे या किसी मस्जिद पे सूर्य ऊर्जा लगा दिया जाए, लाइट हमेशा तो रहती नहीं है। तो इस तरह का समस्या है? बहुत समस्या हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है। अब इन लोग कहते हैं कि हमने तुमको प्रतिनिधि बनाया है, तुमने हमको क्या दिया, हम किस बेस पर किसी पार्टी की तरफ वोट देने क्यों जाएंगे। अब ये लोग हमसे मांगते हैं तो हम जब हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, कहीं गिनती ही नहीं है, तो हम लोग इनको क्या देंगे। तो ये वर्तमान यहाँ का जो सरकार है, राज्य सरकार है, उससे कुछ काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा सर। तो इस बार क्या होगा, क्या लगता है आपको? इस बार तो होगा जो है पंजा यहाँ से जाएगा। अच्छा जाएगा जी। और आमेठीर छवि এইখন আসলে আমি প্রথমতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সোনিয়া গান্ধীৰ ৰায়বেৰেলী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ আমেঠীৰ সীমামূৰীয়া এইখন গাঁও, যিখন গাঁৱত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ। উন্নয়ন আসলতে সুদূৰ পৰা হঠাৎ তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে যি উন্নয়ন হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিলে, কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ বা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কিছু ক্ষোভ উজৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসকল কৃষকে। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আসলতে ৰাহুল গান্ধী, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাহুল গান্ধী দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমষ্টিটোৰ সাংসদ হৈ থকা স্বত্বেও কিন্তু সেই সময়ত যদিও উন্নয়ন আছে, যি ধৰণৰ উন্নয়ন আসলতে আশা কৰিব পাৰি সেই উন্নয়ন দেখা পোৱা নাই বুলিও এইসকল লোকে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে মিশ্ৰিত অনুভৱ, তেওঁলোকৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত আসলতে ভোট কাক দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যেহেতু প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে, আমেঠীৰ প্ৰসংগ, আমেঠী সমষ্টি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আৰু য'ত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেই পথটোত কোনো ধৰণৰ অন্য বাহন নচলে আৰু এইদৰে মহৰ গাড়ীত ব্যৱস্থা কৰা হয়। ইয়াতে যিসকল লোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগে, চহৰলৈ ওলাই যাব লাগে, এই গাঁৱৰ পৰা এই ধৰণে এনেকুৱা বাহনত উঠি ওলাই যাবলগীয়া হয়। গতিকে আমেঠীৰ দৃশ্য এয়া, আমেঠীৰ চকুলৈ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। এইবাৰ আহক লৈ যাওঁ আমেঠীৰ আন এক দৃশ্য দেখুৱাম। আমেঠীৰ চকুলো আচলতে মচিব কোনে, ৰাহুল গান্ধী নে স্মৃতি ইৰাণীয়ে। আৰু আমেঠী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এগৰাকী কৃষকৰ ঘৰত আহি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কৃষকসকলৰ সমস্যা কি, সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু বৰ্তমান কৃষকৰ মনত কোনখন চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা আছে সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী কৃষক আছে, আমি কৃষকগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। सामने इलेक्शन है तो किसानों का बहुत सारा समस्या भी है, तो आप लोग कैसे मतलब जज कर रहे हो, कैसे मतलब दिख रहे हो कि इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए, या फिर किसानों का जो समस्या है इसको कौन सा सरकार ज़्यादा गुरुत्व दे रहे हैं? हमारे सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस है भाई, हमारी तरफ कांग्रेस ने क्या दिया आप लोगों को? हमको बहुत छूट दिया था कांग्रेस में, सब चीज़ ही आज़ादी दी थी। हाँ, तो किसानों का समस्या नहीं है? दूसरा कौन से किसान तो परेशान है, सब काहे से, हर चीज़ से परेशान है किसान। किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही किसान को भाई। क्या क्या नहीं मिल रहा है? कोई चीज़ नहीं मिल रही किसान को। तो नुकसान हो रहा है किसानों का? बहुत ज़्यादा हो रहा है नुकसान किसानों का। तो कौन सा गवर्नमेंट नहीं दिया सुविधा? योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया? ना कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भाई, कोई सुविधा नहीं दिया आदित्यनाथ ने। तो आपके सांसद जो रहे राहुल गांधी जी, वो राहुल गांधी जी कैसा है? वो सही है, बढ़िया है वो। तो किसानों के लिए क्या पहले खूब छूट दिया हम लोगों को, हर चीज़ कब सस्ते में मिलती थी, अब साले हर चीज़ पे महंगाई इतनी कर दी है
कि कोई छोटा मोटा किसान लेने का राजी नहीं है, तो उसकी फसल नुकसान कर जाती है, वो कहाँ से कर पाएगा। আমেথিত দুখৰ আন এটা চিত্ৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি সঁচা ছবি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গোবৰৰ দম এটা দেখা পাইছে আৰু কি কাৰণে আছে সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আমি এইগৰাকী মহিলাৰ ওচৰলৈ ৰাখিব লাগিব কাৰণ যি সময়ত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ কথা চৰকাৰে কৈ থকা হৈছে উজ্জ্বলা আঁচনিয়ে চুই গৈছে নে যোৱা নাই আজিও বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ পায় নে নাপায় নে এই গোবৰৰ জৰিয়তে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰান্ধিবলগীয়া হৈছে সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম इस चीज से क्या काम होता है इसी से खाना बनता है हाँ वो गैस नहीं है क्या सिलेंडर गैस सिलेंडर नहीं मिला है क्यों सरकार तो मुफ्त में दे रही है नहीं मिला भाई नहीं हमें यहाँ प्रधान नहीं पाया तो नहीं देता क्यों नहीं देते क्या बोलते हैं कहा थे मिलते नहीं ना कहा दी आपका बीपीएल कार्ड है हाँ कार्ड है फिर भी नहीं मिल रहा है प्रधान जी क्या कहते हैं क्यों नहीं मिला और जो कहा था हमें पहुँचते नहीं तो कहा दी तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है क्या कहू का हमारे मौजों में कहू को नहीं मिला ऐसे ने कहा वही चमार सूद का जहाँ मिला हुआ बाकी और कौन जात में नहीं मिला और घर में बिजली मिला सरकारी बिजली तो हाँ लाइन नहीं है लाग नहीं ना हमारे में और हाँ ऐसे ही खाना पकाते हो आप यही से खाना पक्का है আৰু এই দৃশ্য এই সঁচা ছবি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত যদিও বিনামূলীয়াকৈ চিলিণ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু আমেথিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এটাত এতিয়াও কিন্তু সেই ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত আৰু সেইবাবেই গোবৰৰে এটা তৈয়াৰী কৰিছে আৰু এই গোবৰৰ জৰিয়তে আচলতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে প্ৰতিদিনে সেই সম্পৰ্কে জনাইছে আমেথিৰ আন এখন ছবিয়ে আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত উপস্থিত আছোঁ যিটো সমষ্টিৰ নাম হ'ল এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি আমেথি সমষ্টি আৰু আমেথি সমষ্টিৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই সমষ্টিটোত কি ধৰণে লোকসকলে জীৱন যাপন কৰিছে একাংশ লোকে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামুক অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম যাতে আমি ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছোঁ ভিতৰৰ গাঁও এখন সন্মুখত নিৰ্বাচনক লৈ গাঁওবাসী কি ধৰণে ব্যস্ত আপোনালোকৰ সুবিধা মিলা नहीं सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला हमको सब घर मिला कुछ नहीं मिला घर द्वार সেইসকল লোকে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ সুবিধা এই মুহূৰ্তত পোৱা নাই আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দৰ্শকসকলে দেখা পাইছে যে কি ধৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড এই গাঁওসমূহত আমি দেখুৱাইছোঁ কি পাইছে সুযোগ সুবিধা শিক্ষা স্বাস্থ্য এই সকলোবোৰৰ পৰাই বঞ্চিত যেন অনুভৱ হয় এটা ঘৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ধৰণে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যাও তেওঁলোকৰ আছিল যথেষ্ট ভোট ডালতে अच्छा तो पिछले बार भी डाले थे हाँ आप लोग का सुविधा कर दिया सरकार ने कौन सुविधा करें कुछ नहीं करें कुछ नहीं किया है तो क्या ज़्यादातर लोग क्या काम करते हो आप लोग मजदूरी करते हो मजदूर के बारे में सरकार सोचते है कि नहीं सोचते है अब सोचा जो सबके वही हमारा सबके है 70-80 रुपया हमारा सबके मजूरी है तो इतने में का हुआ है बच्चन का पालेगी अपन पेड़ जिया क्या करे स्कूल भेजते हो बच्चों को हाँ जाती सरकारी में मुफ्त में पढ़ते हैं पैसा रहना तो नहीं लगता है स्कूल में सरकारी स्कूल में हाँ नहीं पढ़ते पैसा बिजली कब मिला बिजली तो बिल ही नहीं अच्छा ये कौन सा सरकार अच्छा है बीजेपी या कांग्रेस सब अच्छे है हमारे सबके बारे सब अच्छा है सबको वोट नहीं सबका काहे डर में हाँ और का अब वही समय तो कह के करे लेकिन और सही है और कुछ सुविधा सही है कि नहीं और सुविधा सब सही है सब सही है আৰু এইদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছু নেদেখা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব কি ধৰণৰ আচলতে কি ধৰণৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে জীয়াই আছে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে হাই প্ৰফাইল সমষ্টি আমেথিৰ দৰে সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইসমূহ গাঁৱৰ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী পৰিয়ালে আচলতে নেতৃত্ব লোৱা আমেথি সমষ্টিৰ এই দশা আৰু তাৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ কিন্তু তাৰ পিছতো এই অৱস্থা হা এই ঘৰ তেখেতে দেখুৱাব বিচাৰিছে আচলতে ঘৰখন দেখুৱাব বিচাৰিছে ঘৰখন চাই লোৱা আৰু তাৰ পিছত অনুভৱ কৰিবা আমি তেখেতৰ অনুৰোধ মৰ্মে ঘৰখনত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামুৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে এন্ধাৰ দেখিব এই মুহূৰ্তত এটা ৰুমৰ ভিতৰতে
তেওঁলোকে এই ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেঠি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ দৃশ্য উন্নয়নৰ প্ৰসংগ যেহেতু উত্থাপিত হৈ আছিলে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ শ্লোগান আছিল কিন্তু তাৰ পিছত উন্নয়ন কোন দিশে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব এই ধৰণৰ যিটো কোঠা দেখুৱাইছিল এই কোঠাটোৰ ভিতৰত কিমানগৰাকী লোকে বাস কৰে ऐसा छोटे से एक घर में कितने आदमी रहते हो आप लोग 5 आदमी रह जाते हो उपाय नहीं है ना और है नहीं ना उपाय तो कहाँ रहा जाए और रहने का जमीन यही है हाँ তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এই ধৰণৰ সৰু কোঠা এটাত 5গৰাকীকৈ লোকে 5-6গৰাকীকৈ লোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয় और क्या नहीं मिलता है राशन नहीं मिलता है राशन नहीं मिलता है नहीं कार्ड नहीं है आप लोगों का नहीं कार्ड तो है वो राशन कार्ड नहीं है क्यों अब पता नहीं नामे नहीं चढ़ा आप लोगों ने नहीं गया था गए रही एक घर देने के लिए सरकारी घर लाने के लिए पैसा चाहिए होता है क्या देने के लिए अब पैसा वैसा तो साहब जो हमका मिलबे नहीं बा तब हम पैसा नहीं देना भाई झूठ का है बोली अच्छा हाँ नहीं अबे नहीं मिली नहीं पैसा मांग करते नहीं पैसों को नहीं मांग करी ना मिली लेकिन मिला भी नहीं है नहीं और ये बच्चे लोग स्कूल जाते हैं हाँ जाते आप स्कूल जाते हो कौन से क्लास में बताओ कौन से श्रेणी में कक्षा 6 में 6 में जी स्कूल का नाम क्या है किशोरी प्रभा कहाँ पे है स्कूल चौराहा पर चौराहे पर बहादुरपुर সেইসকল ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা গৈ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব বিচাৰে কিন্তু ৰাজনীতিৰ যি লেতেৰা স্বৰূপ সেই লেতেৰা স্বৰূপে এইসকল লোকক এতিয়াও এই ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই আহিছে আচলতে আমেঠি সমষ্টিৰ এই দুখ লগা ছবি দেখিলে বহু প্ৰশ্নই উত্থাপিত হয় এইসকল ভাগ্য এতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব কোনে জাতপাতৰ ৰাজনীতি বহুত হয় উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু দলিত শ্ৰেণীৰ এইসকল লোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও এই ধৰণে হৈ আছে আৰু সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক क्या क्या तकलीफ है आपको कॉलोनी नहीं न मिली अच्छा हाँ लेटर तो मिल गया है वो मैं 11,000 मिला 12 मिले तो 11 मिला है मतलब 12,000 सरकार ने देने वाले थे 11,000 मिला हाँ 1,000 कहाँ गया हैं अब कहाँ गाँव हुए अब जौन पावा जौन जानी हाँ तो कोई खा दिया बीच में अब खा डालते सही का এই সমস্যা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 12,000 টকাৰ শৌচালয় আহিছিলে কিন্তু 12,000 টকাৰ ঠাইত 11,000 কে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে 1,000 টকা ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে সেই কথা উত্তৰ প্ৰদেশতো প্ৰতিফলিত হৈছে একেই দৃশ্য क्या क्या तकलीफें है तकलीफ साहब वही जो 11,000 मिले 1,000 रुपये नहीं मिले हम लोगों को हाँ और क्या सुविधा मिला है अरे और सुविधा है हमको दिया है वो कॉलोनी दिया है हाँ तो कौन सी सरकार ने ज़्यादा सुविधा दिया ज़्यादा सुविधा हमको दिया है भाजपा ने हुआ ना कॉलोनी हमको बनवा दिया अच्छा हाँ लेट्रिन बनवा दिया लेकिन लेट्रिन में 11,000 रुपया दिया है 12 का अलाउंस है तो इस बार वोट किसको जाएगा अरे वोट उसी को देंगे भाई भाजपा को हमको कॉलोनी दिया ना उसने अच्छा हाँ तो उसको देंगे तो इस तरफ तो नहीं दे रहे कॉलोनी आप लोगों को नहीं मिला कॉलोनी हमको नहीं मिला आप लोगों का वोट किसको जाएगा भाजपा ने कॉलोनी नहीं दिया वोट किसको दोगे हाँ दिन जाए सबका जाए जब सबका दिन जाए तो वोट वोटे का जाता भैया हाँ वोट वोटे का जाए भाई अब लेटर हम पाए हैं राहुल गांधी कैसा है अब कॉलोनी नहीं न पाए राहुल गांधी कैसा है राहुल गांधी जब यहीं हो यहीं का जनिए कैसा है पापा न पढ़े न लिखे हम भैया अच्छा हाँ दुनिया के मतदान करने आते हो कि नहीं रहते वोट देते हो आप वोट डालते हो का वोट वोट तो छाड़े जाए जहाँ पर अब तो है औंठो नहीं लगता मशीन औंठे में धर जाते हैं আৰু এই ধৰণে অৱশ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ ছবিখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দলিত শ্ৰেণীত আচলতে কি ধৰণে উন্নয়নৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছিলে বিকাশৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছিলে কিন্তু বিকাশ প্ৰকৃত ছবি ক'ত আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকলে আচলতে ভোটাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভোটাৰ আমেঠিৰ ভোটাৰ
उपेक्षाओं का दिगंबर भी छूता नहीं है। मैं तो स्वयं दिगंबर का भक्त हूं, इसीलिए हमें किसी के अपमान का अंबर छूता नहीं है। আশ্ৰম এখনত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ। মণি মহাৰাজ ইয়াৰে এই আশ্ৰমখনৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিত এই ধৰণৰ আশ্ৰমসমূহেও এক गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे। अमेठी में बहुत दिनों से राहुल गांधी या गांधी परिवार का राज हो चुका है, तो इस बार क्या होगा अमेठी में, क्या लगता है आपको? देखिए, वो मतदाताओं के ऊपर निश्चित है कि कौन क्या करेगा, क्योंकि हमारा किसी परिवार के प्रति ना आक्रोश है और ना किसी के प्रति मेरी उपेक्षा है। हम संत हैं, हम सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। उनका क्षेत्र रहा है, आज भी उनका क्षेत्र है, कल क्या होगा यह जनता बताएगी। बोला जा रहा है कि मतलब मोदी ने जो प्रॉमिस किया था कि राम मंदिर नहीं बना या नहीं बना, किसी लोगों को हिंदू के बीच में भी थोड़ा बहुत मतलब तकलीफें है, तो आपको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोदी जी राम मंदिर बनाए या मेरी उनसे शिकायत हो सकती है, लेकिन उनकी उपेक्षा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस समय आतंकवाद को लेकर के जो निर्णय लिया है, देश के मजबूती के उन्होंने जो काम किया है, कहीं न कहीं से उन्होंने मेरी पहल को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने पत्रावली दाखिल की है, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि हम सरकार के रामलला के पक्ष में हैं, राम मंदिर बनाना चाहते हैं और हमें लगता है कि राम मंदिर बनेगा। बीजेपीर एगराकी पूर्वर मंत्री आसामी जानिब विचारिम, आपके पास आपसे जानना चाहूँगा अमेठी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इस बार अमेठी में क्या होगा? स्मृति ईरानी फिर से राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी इकट्ठा हैं। चैत्र मास की नवरात्र की मनाने के लिए और अमेठी के लोग हैं। जहाँ तक आपने राजनीति की बात किया, पूरा देश परिवर्तन मांग रहा है। कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है, अमेठी उससे अलग नहीं है। आज अमेठी भी परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से नेहरू और गांधी के नाम पर 70 साल कांग्रेस देश पे राज्य करती रही, उसी तरीके से संजय और राहुल के नाम पर, संजय और राजीव के नाम पर राहुल और प्रियंका अब ज़्यादा दिन तक अमेठी वासियों को बेवकूफ़ नहीं बनाए। और आमी बर्तमान आसो उत्तर प्रदेशर आमेठी गुरुत्वपूर्ण समष्टि, कारण राहुल गांधीर समष्टि एटो और एखन दुकान उत्तर प्रदेशर बहु चर्चित आमेठीर एखन दुकान, এই दुकानखनते विभिन्न धৰণৰ राजनैतिक যে আড্ডা, ৰাজনৈতিক আড্ডাৰ স্থলী এই দোকানখন, কাষতে ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰ্যালয় আছে, বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আছে। গতিকে এই দোকানখনতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ সচেতন লোক আহি উপস্থিত হয় আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি কাকতৰ সমাহাৰ। এই টেবুল দুখনতে বহি বিভিন্ন ব্যক্তি আহি বাতৰি কাকত পঢ়াৰ লগতে আচলতে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমি ইয়াৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ধৰণৰ সচেতন নাগৰিকৰ মাজত বাৰ্তা চলিছে, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা চলিছে বা তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনক লৈ। যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈকে মই এইবাৰ যাম, তেখেত এই দোকানখনৰে স্বত্বাধিকাৰী। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিম। सामने इलेक्शन है, तो इस बार अमेठी में क्या होने वाला है, क्या लगता है आप लोगों को, किसको पसंद करें? यहाँ कुछ नवा नहीं होने वाला है, यहाँ वही होगा। सो हमारा यहाँ राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वही रहेंगे। और उनसे अच्छा और कौन काम करेगा? राहुल गांधी ने क्या दिया है आप लोगों को? राहुल गांधी ही नहीं, राहुल के पिता से लेके और आज तक राहुल गांधी ने तो सब कुछ दिया। किसने दिया है? अगर देने की बात कही जाती है तो स्मृति ईरानी 5 साल रही, इन्होंने दिया नहीं बल्कि यहाँ से ले लिया है। क्या लिया है यहाँ से हमारी ट्रिपल ITI थी तो उसमें बढ़िया दुकान खुलवा दिया। यहाँ पर एक फुफेड़ थी, उसको उठा के ले गई, दूसरी जगह लेके चली गई। इनकी 5 साल सरकार थी, इन्होंने क्या क्या झूठा आरोप लगाती हैं, या कुछ नहीं। एक SPL फैक्ट्री है, कहती राहुल गांधी ने उसको लिखा लिया, जबकि वो उसको हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ है, उसको राहुल गांधी ने स्वयं कोर्ट के द्वारा लिया है। किसी प्रकार का न किसान का कोई हस्तक्षेप है, न कहीं कुछ है। तो जो कुछ हमको यहाँ मिला है वो कांग्रेस की सरकार से मिला है। हमारे अमेठी को हमारे राहुल जी ने ही सब कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया नहीं। तो यहाँ पे जो बीजेपी का सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो सरकार भी कुछ काम नहीं कर रहे? वो नहीं, वो 2-3 काम कर रही है। नंबर 1 तो महंगाई चरम सीमा पर कर दिया है, सारे खेत जानवरों को खवा ले रही है, दुनिया भर का हरा जानवर छोड़ दिया है, ये उसका पहला मुद्दा है। ये लोग खाली यही कहते थे कि मेरी सरकार यहाँ मिल जाएगी तो मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, मैं देश का विकास कर दूंगा।
सबको हौदा की तरह ढांक दे हैं। अब एक के बाद सारी महंगाई से भरपूर प्रदेश जो है भरने, जगह जगह देखिए हत्याएं हो रही। आप चले जाइए किसी तहसील में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, आप एप्लीकेशन दे के चले आइए, कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा दे दीजिए, सारे लोग सुनने वाले। आन एगराकी व्यक्तिर ओचरলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। তেখেত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সম্পাদক, ইয়াৰে দুখনকৈ হিন্দী বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে ইয়াতে কৰ্মৰত, দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। यहाँ का जो जनता का अभिमत है, जो उनकी सोच है, ये है कि भाई 5 साल में स्मृति ईरानी तो मंत्री रही हैं, कई पद बदले उनके, कई मंत्रालय बदले उनके, तो अगर उनको हम जिताते हैं तो फिर मंत्री बनेंगी और फिर मंत्री रहेंगी। अगर हम राहुल गांधी को जिताते हैं तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे। तो इन दोनों, इस बार प्रधानमंत्री चाहिए, मंत्री नहीं। मंत्री तो चाहिए, मंत्री तो हमने 5 साल देख लिया भाई साहब। यहाँ की जनता ये कह रही है कि भाई मंत्री तो हमने 5 साल देख लिया, यहाँ से तमाम चीज़ें चली जा रही हैं आने के बजाय, बाकी जो कुछ भी आ भी रही हैं, कहीं उनका हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है और कहीं उनका शिलान्यास हो रहा है। तो वो तो राहुल गांधी, हम लोग जानते हैं इस बात को, तो राहुल गांधी राजीव गांधी के नक्शे में बहुत पहले ही था। अच्छा, वो भी अभी उसका जो मूर्त रूप दिया जाना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है अभी तक। तो अब हम अगर करते हैं भाई प्रधानमंत्री हमको चाहिए, हमको मंत्री तो हम 5 साल देख लिए हैं, ये यहाँ की जनता चाह रही है, जनता यही कह रही है यहाँ की कि आन एगराकी व्यक्ति আছে, তেখেতৰ সাংবাদিক, তেখেতৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ মই। तो आपको भी क्या लगता है, इस बार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए अमेठी को? नहीं, इस बार बेटी की सोच है कि प्रधानमंत्री ही देना चाहिए, मंत्री नहीं देंगे। तो मतलब स्मृति ईरानी का कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और এই ধৰণৰ যি চৰ্চা কিছু নৱপ্ৰজন্মৰ प्रतिनिधि আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। युवा है आप लोगों को क्या चाहिए? बेरोजगारी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, तो कौन सा सरकार चाहिए, किस तरह का सरकार चाहिए, और आपका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए? प्रतिनिधि तो हमारे बहुत सही हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ही रहेंगे। रीज़न है, तो बेरोजगारी ख़त्म क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी का मतलब ये है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, नंबर 1 बात, उस हिसाब से जिम्मेदार तो मोदी है। पहली बात, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। सरकार योजना निकालती है, योजना आती है, फॉर्म भरे जाते हैं, भर्तियां होने से पहले ही मामला चला जाता है कोर्ट में। तो बेरोजगारी ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी भाई? सिर्फ एक कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री हो गए राहुल गांधी। আমেঠিৰ পৰা সেইটো চিঞৰে উঠিছে যে মন্ত্ৰী এবাৰ নালাগে, স্মৃতি ইৰাণীক মন্ত্ৰী হিচাপে পাইছিলে, কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীৰ প্ৰতি ভৰসা নাই বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিহেতু আমেঠিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী প্ৰতিনিধি আৰু ৰাহুল গান্ধী প্ৰতিনিধি হোৱাৰ বাবে এইবাৰ আমেঠিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক বিচৰা হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ চৰ্চা আচলতে চাই পে চৰ্চা নহয়, লচ্চি আহিছে, লচ্চিৰ ওপৰতে আমি চৰ্চা কৰিছিলোঁ আৰু দেখা গৈছে যে আমেঠিৰ যি জনমত, সেই জনমত পৰৱৰ্তী সময়ত কোন পক্ষে যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আমেঠিৰ ৰাজনীতি আৰু আমেঠিৰ ইতিহাসৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে। আমেঠিৰ ৰাজ পৰিয়ালে আমেঠিৰ ৰাজনীতিত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছিল, কাৰণ আমেঠিৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ওপৰত আমেঠিৰ জনতাৰ বিশ্বাস আছিল, বা আমেঠিৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল আমেঠিৰ জনতাৰ ওপৰত, আমেঠিৰ ভোটাৰৰ ওপৰত। এই মুহূৰ্তত আহি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আমেঠিৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰাজমহলত। ৰাজমহলৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা বিশাল অট্টালিকা, আৰু ইয়াৰ পৰাই নিৰ্ধাৰিত হৈছিলে আমেঠিৰ ভৱিষ্যত। আৰু মোৰ পিছফালে আছে এইটোৱে আমেঠিৰ ৰাজমহল, য'ত খোদিত হৈ আছে শতিকাজোৰা বুৰঞ্জী। আৰু এই ৰাজমহলত এতিয়াও এনেকুৱা এটা পৰিয়ালে বাস কৰে, যিটো পৰিয়াল ৰাজ পৰিয়ালৰ, আৰু যিটো পৰিয়ালে এতিয়াও আমেঠিৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলায়। এই ৰাজমহলটোৰ লগত সম্পৰ্ক আছে অসমৰো, কাৰণ এই ৰাজমহলটোৰ যিগৰাকী মহাৰাজ, সেইগৰাকী হৈছে মহাৰাজ সঞ্জয় সিং, আৰু তেখেত অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। বৰ্তমানো তেখেত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, আৰু তেখেতে এই ৰাজমহলটোত থাকে। আৰু এইবাৰ চুলতানপুৰৰ পৰা, আমেঠিৰ পৰা কিছু নিলগত অইন এটা সমষ্টি, লোকসভা সমষ্টি চুলতানপুৰৰ পৰা তেখেত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী।
आपको स्वागत है प्राग न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। अब अमेठी का महाराजा है और अमेठी में कैंडिडेट राहुल गांधी जी है। इस बार बोला जा रहा है कि राहुल गांधी केरला में भी चला गया, तो यहाँ पे कुछ डाउट नज़र आ रहा है, ऐसा बात निकल रहा है, तो क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? ऐसा कोई डाउट नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी जी 2 जगह लड़ने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी भी 2 जगह लड़ी थी, बहुत सारे बीजेपी के भी लीडर्स 2 बार लड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार लड़े थे। ये इसमें कोई बात नहीं देखनी चाहिए। सिर्फ दक्षिण में, साउथ इंडिया में केरला से डिमांड हुई कांग्रेस में कि यहाँ से भी लड़ें, इसलिए दक्षिण में भी कांग्रेस के लीडरशिप का एक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए लड़ रहे हैं। कोई कमजोरी अमेठी में नहीं है। ৰাজ পৰিয়ালত যেতিয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতে দেখা দিলে, মহাৰাজৰ প্ৰথম পত্নী গৰিমা সিঙৰ পুত্ৰই এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত আমেঠিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু সেইগৰাকী গৰিমা সিং ইতিমধ্যে বিধায়ক হিচাপে, আমেঠিৰ বিধায়ক হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছে। গতিকে এই ৰাজ পৰিয়ালটোৰ পৰা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত আৰু সেই সংঘাতৰ পৰিণতিত ৰাজনীতিয়ে, আমেঠিৰ ৰাজনীতিয়ে নতুন গতি লাভ কৰিছে। সদায় আমেঠিৰ ৰাজনীতি নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে ৰাজ পৰিয়ালৰ, এই ৰাজমহলৰ ৰাজনীতিৰ পৰাই। এই আমেঠিৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰাজকোঁৱৰ আনন্দ প্ৰতাপ সিঙৰ সৈতে আমি কথা পাতিম ৰাজনীতি সম্পৰ্কে, আমেঠিৰ ৰাজনীতি, আমেঠিৰ ভৱিষ্যত আৰু আমেঠিত राहुल स्मृति ईरानी जुस्कन সম্পর্কে। कहा जाता है कि अमेठी का राजनीति यहाँ के राज परिवार को छोड़ के हो नहीं सकता है। कितना दम है इस बात में और किस तरह से होता है? देखिए, इस बात में दम है कि नहीं ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसको जनता बोलती है। राज परिवार आज मायने में रह नहीं गया है, और चाहे राज परिवार हो, चाहे राहुल गांधी जी का उनको युवराज बोला जाता है, अब यहाँ पर राज वही करेगा जो जनता के बीच में रह के जनता का काम करेगा। और उत्तर प्रदेशत आহি আমি আমেঠিত উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমেঠিত বিচিত্ৰ ৰূপ দেখা পাইছোঁ। ইয়াতে সাধু বাবা এগৰাকী আছে, ঘোঁৰাত উঠি সাধু বাবা আহি আছিলে। এখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ अमेठी राजनीति की कहे। बाबा जी, इलेक्शन क्या हलचल चल रहा है, किसका सरकार बनेगा? बढ़िया चल रहा है, उसके बाद में मोदी का सरकार बनेगी, बाकी लड़ने वाले के तो लड़ें। मोदी का सरकार क्यों मोदी को चाहिए सेंट्रल में? किसानों को कम से कम सुविधा मिल रही है, किसान जो है सुविधा पर खुशी है। तो यहाँ पे किसको जिताना है अमेठी में? अब देखिए, यहाँ तो हमेशा राहुल निकले हैं, यहाँ अमेठी से। अब और इसके अलावा हम क्या बताएं, अब उनका पूरा परिवार यहीं से निकलता है। तो स्मृति ईरानी आ रही है इस बार, स्मृति ईरानी का चांस नहीं है? अमेठी से वो कोई नहीं हारेंगे, सब निकल जाएंगे। लेकिन राहुल को जीतना है अमेठी से? हाँ, वो पक्का समाचार है, वो बहुत दिन से जीत रहे हैं। সাধু বাবাই এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছক তেখেতসকলৰ পূৰ্বপুৰুষেও দি আহিছিল ভোট, আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট এইবাৰো ৰাহুল গান্ধীক ভোট দিব বুলি এইগৰাকী সাধু বাবাৰ মন্তব্য। আৰু আছে ভিন্ন ৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত দেখুৱাই যাম। আমেঠিত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ যে ৰাহুল গান্ধীৰ দুৰ্গ আমেঠিত। আচলতে ৰাহুল গান্ধী নিজে কিমান শক্তিশালী তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি গৌৰীগঞ্জৰ এইটো কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, আমেঠিত অন্তৰ্গত। এইটো মোৰ বাওঁফালে থকা এইটো এটা কাৰ্যালয়, কংগ্ৰেছী কাৰ্যালয়, আৰু মোৰ সোঁফালে মোৰ পিছফালে থকা আচলতে যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়টো গেষ্ট হাউচ ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে নিৰ্বাচনী গতিবিধি, আমেঠিৰ নিৰ্বাচনী গতিবিধি নিৰ্ণায়ক হ'ব বা নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই গেষ্ট হাউচটোৰ পৰাই। আৰু আচলতে ইয়াতনো কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, কাৰণ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে এইবাৰ স্মৃতি ইৰাণী যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছিল, কিন্তু কথাটো কিমান দূৰ সত্য সেইবাবে আহি আমি আমেঠিত উপস্থিত হৈছিলোঁ। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ আৰু লগতে বিধান পৰিষদৰ সদস্য দীপক সিং ডাঙৰীয়া। আমি দীপক সিং ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে ৰাহুল গান্ধীক আমেঠিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা লৈছে বা আমেঠিত কিমান দূৰ শক্তিশালী কংগ্ৰেছ। स्वागत है आपको प्राग न्यूज़ में। थैंक यू। एसपी और बीएसपी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या कांग्रेस का अमेठी में? अमेठी में पहले समाजवादी पार्टी और बसपा अपने अपने प्रत्याशी देती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इनके खिलाफ
पहले प्रत्याशी देती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया है, तो उसका भी थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलना ही मिलना होता है। लेकिन जो जीत का अंतर है राहुल गांधी जी का, वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछली बार झूठ अफवाह के बावजूद भी 1 लाख अधिक वोट से जीते थे। उसके पहले राहुल गांधी जी 3.5 लाख से अधिक वोट जीते थे, उसके पहले भी लगभग 4 लाख वोट जीते थे। तो राहुल गांधी जी के इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे अमेठी से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेगा, आप लोगों का विश्वास है? निश्चित रूप से। अपने सामने कांग्रेस कार्यालय में जो ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है, उसके पहले नारा लिखा है। अमेठी की हर घरों में आप जाइए, अमेठी के हर घरों में नारा लिखा हुआ है, हमारा एमपी देश का पीएम, हमारा ये सांसद हमारा गौरव, अमेठी का सांसद अमेठी का सम्मान। तो यहाँ पर इज्जत बख्शते हैं अमेठी के लोग, अमेठी के लोग सम्मान से देखते हैं, अमेठी के लोग राहुल गांधी के नाम पर प्राउड फील करते हैं। तो अमेठी में इस बार माहौल कुछ और है। यहाँ पर जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो सड़कों और चौराहे पे भले दिख जाएं, गाँव में और क्षेत्रों में ना उनका कोई नुमाइंदा है, ना कोई उनका जानने वाला है। यहाँ पर एक तरफा चुनाव होगा राहुल गांधी जी के पक्ष में। এই মুহূৰ্তত মই য'ত উপস্থিত আছোঁ, এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ আমেঠিৰ কাৰ্যালয়, আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিনিধি। আচলতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমেঠিত তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। গতিকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সুধিবলগীয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বা দিবলগীয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰত থাকে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমেঠিৰ সমগ্ৰ কাৰ্য এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে পৰিচালনা কৰে। তেখেতৰ নাম চন্দ্ৰকান্ত, আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। स्वागत है आपको प्राग न्यूज़ में। जी नमस्कार। नमस्कार। अमेठी में क्या चल रहा है? वैसे तो निकल रहा है कि राहुल गांधी जी अमेठी में इस बार टफ कॉन्टेस्ट का सामना करने पड़ेगा, कितना सही है बात? नहीं, देखिए बिल्कुल टफ कॉन्टेस्ट नहीं है। राहुल गांधी जी यहाँ 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये जो 2014 के चुनाव से जोड़ के जो बात होती है, 2014 का चुनाव जो था वो कांग्रेस के लिए 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार की, और किसी भी सरकार में होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए यहाँ अमेठी में कोई चुनौती नहीं है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ राहुल गांधी जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, एंड दिस वुड बी हिस्टोरिकल विन फॉर राहुल गांधी जी। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे आप लोग, और कॉन्फिडेंट किस तरह का है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को क्यों वोट देंगे अमेठी के लोग, क्या किया है इन्होंने? 5 साल हो गया दुर्भाग्य था अमेठी का, स्मृति जी को चुनाव हारने के बाद भी। जितना 5 साल नहीं 15 साल में राहुल गांधी अमेठी का दौरा किए होंगे, जितना काम किए होंगे, स्मृति जी चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में लगातार लोगों के सुख दुख में, लोगों के क्षेत्र के विकास के बारे में, एक एक चीज़ का छोटे छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े लोगों के इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी रखी, और लोगों के बीच में भरोसा दिलाया, और भरोसा पर खरा उतरा। वो राहुल गांधी 15 साल या अब तक जो कांग्रेस रही हो अमेठी के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ की जनता जागरूक हो गई है, और कांग्रेस यहाँ से निश्चित रूप से राहुल गांधी हार कर ही जाएंगे। আৰু এগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতে আমেঠিত দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত। গতিকে আমেঠিৰ ইস্যু সম্পৰ্কে, এইবাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে তেখেতৰ ধাৰণা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। इस बार क्या लगता है आपको, अमेठी में क्या होने वाला है राजनीतिक रूप से? इस बार राजनीतिक रूप से जो है, अब जो है स्थिति ये बन रही है कि यहाँ हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए, और एसपी बीएसपी ने इस बार कैंडिडेट नहीं उतारा, और राहुल जी ने जिस तरह से 45 सांसदों के साथ पूरे देश की राजनीति में किसानों के लिए, जनता के लिए संघर्ष किया, उसकी इतना सराहना हो रही, लोग उतना लाइक कर रहे हैं कि ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है इसको जो है हम नकार देंगे। गांव की स्थिति जो है ख़राब है, बदहाल है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, नहरें सूखी पड़ी हैं, किसानों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग अपनी सुख सुविधाओं को लेकर इतना परेशान, इतना चिंतित हैं। देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, जिससे जो है उनके ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, ऑनलाइन जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही। जीएसटी का बोझ और नोटबंदी का बोझ
सबसे ज़्यादा बोझिल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नज़र आ रहा है। तो गांव के लोग इस बार खिलाफ है बीजेपी इस बार गांव के लोग बीजेपी को लाइक करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी को विपक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल के चाह रही कि यहाँ राहुल जी या गांधी परिवार रहेगा, तब विपक्ष का भी प्रधानमंत्री मत्था टेकने के लिए आएगा। संभावनाएं पूरी है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी और राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आसलते उन्नयन शिक्षा बा विभिन्न प्रकाৰৰ যদিও ইয়াতে অসুবিধা আছে, বহুতো সমস্যা আছে, কিন্তু তাৰ পিছতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমেঠি বা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভোটাৰসকল ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু হ'লেও সচেতন, অৰ্থাৎ ৰাজনীতি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ সুখ অনুভৱ কৰে বুলি ব্যক্ত কৰিছে। আমি যদি দেখা পাইছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ আলোচনাত ব্যস্ত হৈ থাকে, সেয়া লাগিলে চাহৰ দোকানৰ সন্মুখতে হওক, যিকোনো গাড়ীত হওক বা যিকোনো এটা ঠাইত যদি একত্ৰিত হয় 4-5জন লোক, তেওঁলোকৰ মাজত কেৱল ৰাজনীতিৰ আলোচনা। লক্ষণীয় হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেঠিবাসীয়ে এইবাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কাক আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়, কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰি লয়, দিল্লীত কাক বিচাৰি লয় আৰু আমেঠিৰ ভাগ্য কাৰ ফুলাই দিয়ে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামু বাস্পৰ সৈতে মই শান্তনু মহন্ত আমেঠিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ৰণদংকা 2019 আগবঢ়ালে বেষ্ট চিমেণ্ট, জানদাৰ চিমেণ্ট, শানদাৰ জোৰ, বেষ্ট লাগে এইবাৰ।